तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। ये इन लोगों के पास से शर्म नाम की चीज खत्म हो गई, एकदम शेमलेस हो गए। सवाल करने वालों के बारे में सोचता कि ये तो ऐसा लगता है जैसे कहीं बाहर से चाइना से आके लोग बैठे थे यहाँ और आकर के इन्होंने वक्फ बोर्ड बना रखे थे और कब्जे कर लिए जमीन। वही पार्टी जो आज ये कह रही है कि कब्जे करते थे, वही पार्टी 2009 में ये कहा करती थी कि इनकी जमीनों पर कब्जे हुए हैं और हम उनके छुड़वाने में रोल प्ले करेंगे। तो 2009 तक जो कम्युनिटी मजलूम थी वक्फ के मामले को लेकर, वही कम्युनिटी जालिम हो गई। ওয়াকফ সংশোধনী আইন মুসলিম সমাজের জন্য নয়, বরং মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্রের প্রতিচ্ছবি, বললেন মাহমুদ মাদানী। সংশোধিত ওয়াকফ আইন মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এক ধাক্কা। সহানুভূতি দেখানোর আড়ালে মুসলিমদের বিরুদ্ধে গভীর বৈষম্য লুকিয়ে আছে দাবি মাদানীর। ওদের কাছে লজ্জা বলতে কিছু নেই, লড়াই চলবে, শেষ হবে না। যে কোনো ত্যাগ মেনে নেব, স্বাধীনতার আগেও মেনে নিয়েছি, এক রাশ হতাশা ব্যক্ত করে বললেন মাহমুদ মাদানী। কেবলমাত্র মুসলিমদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে ওয়াকফ সংশোধনী আনা হয়েছে, এর মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব ফুটে উঠেছে, বিস্ফোরক দাবি মাদানীর। যদি এই সংশোধনীতে সমাজের বা কোনো সম্প্রদায়ের অথবা দেশের মঙ্গলের জন্য হতো, তবে গোটা মুসলিম সমাজ এই সংশোধনীর সামান্য ক্ষতি হলেও দেশের স্বার্থে খুশি খুশি মেনে নিত। কিন্তু এই ওয়াকফ সংশোধনী আইন শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা লুটার পরিকল্পনা বলে অভিযোগ মাদানীর। মুর্শিদাবাদ জ্বলছে কেন প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই প্রশ্ন করুন, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন মাদানী। ওয়াকফ সংশোধনী আইন 2025কে ঘিরে দেশ জুড়ে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সভাপতি এবং রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মাওলানা সৈয়দ মাহমুদ মাদানী এক জরুরি সাংবাদিক বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এই সংশোধনী আইন মুসলিম সমাজের জন্য নয়, বরং মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্রের প্রতিচ্ছবি। জমিয়ত নেতা মাদানী বলেন, এই সংশোধনের মধ্যে ওয়াকফ ব্যবস্থায় মুসলিম সমাজে কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিল না আর এখনো নেই, বরং সরকারের দ্বারা নিযুক্ত মুসলিম নামধারী কিছু ব্যক্তিকে ব্যবহার করে এই বোর্ড গঠন করা হবে। যারা সরকার মনোনীত তারা মুসলিম সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি নয়। তিনি আরো বলেন, মিডিয়া এবং সরকার ঘনিষ্ঠ কিছু মহলের মাধ্যমে এমন এক ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করা হয়েছে যে মুসলমানরাই নাকি তাদের সম্পত্তির অনিয়মের জন্য দায়ী। অথচ 2009 সাল থেকে মুসলিমদের জমি দখলের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিল এই সংগঠন। সেই লড়াই আজও চলমান আছে। সংশোধিত আইনের বিষয়ে মাহমুদ মাদানী বলেন, এই বিল শুধুমাত্র মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটি ধাক্কা। নামে মুসলমানদের, কিন্তু বাস্তবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই আইন আনা হয়েছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য সহানুভূতি দেখানোর আড়ালে এক গভীর বৈষম্য লুকিয়ে আছে। তিনি দাবি করেন, যদি এই সংশোধনীতে সমাজের বা কোনো সম্প্রদায় অথবা দেশের মঙ্গলের জন্য হতো, তবে গোটা মুসলিম সমাজ এই সংশোধনী সামান্য ক্ষতি হলেও দেশপ্রেমে, দেশের স্বার্থে খুশি খুশি তা মেনে নিতেন। কিন্তু এই ওয়াকফ সংশোধনী আইন শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা লুটার পরিকল্পনা, এটি একমাত্র মুসলিমদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করতেই আনা হয়েছে বলে দাবি মাদানীর। মাওলানা মাদানী গভীর উদ্বেগের সঙ্গে বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা বহু সংগ্রামের পর এদেশে আমাদের জন্য কিছু সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। আজ সেই অধিকার ধ্বংসের মুখে। ম্যাজরিটেরিয়ান দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সেখানে সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের চেষ্টা চলছে। মাদানী বলেন, হয়তো আমার কথা, আমার আবেগ, আমার কমিউনিটির যন্ত্রণা ক্ষমতাসীনদের কানে পৌঁছাবে না, কিন্তু আমার নাগরিক দায়িত্বের খাতিরেই আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এটা শুধু মুসলমানদের নয়, গোটা ভারতের সংবিধান এবং গণতন্ত্রের জন্য এক হুমকি। এদিকে মুর্শিদাবাদ কেন জ্বলছে, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা মাদানী বলেন, এই প্রশ্ন আমাকে না করে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রশ্ন করুন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন মন্তব্য করে ক্ষোভ ঝাড়লেন সর্বভারতীয় জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সভাপতি এবং রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মাওলানা সৈয়দ মাহমুদ মাদানী। कि इससे पहले का जो एक्ट था, अमेंडमेंट होने से पहले, वो अगर रहता तो जो चाहते वक्फ बोर्ड वाले कर लेते हैं। हालांकि पहले भी जो वक्फ बोर्ड थे
वो बाकायदा एक सिस्टम के तहत बनाए जाते थे। उसमें मुस्लिम सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता था, न पहले होता था न आज है। वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूट करने में, बनाए जाने में सोसाइटी का कोई रोल नहीं कभी रहा, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट बनाया करती थीं वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती थी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल बन रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, स्टेट के वक्फ बोर्ड बन रहे हैं तो स्टेट की सरकारें बना रही हैं। मुसलमानों का कोई रोल नहीं होता था उसमें। हाँ, यह जरूर होता था कि, और अभी भी होगा, कि सरकारें अपनी मर्जी के मुसलमानों को एज वेल एज अदर्स को बना लेंगे। जैसे पहले होता था कि वो अपनी मर्जी के लोगों को बनाया करते थे। अब बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से सारे मुल्क में मीडिया के जरिए से यह फैला दिया गया कि ये तो ऐसा लगता है जैसे कहीं बाहर से, चाइना से आके लोग बैठे थे यहां और आकर के इन्होंने वक्फ बोर्ड बना रखे थे और कब्जे कर लिए। समझ लो, वही पार्टी जो आज ये कह रही है कि कब्जे करते थे, वही पार्टी 2009 में ये कहा करती थी कि इनकी जमीनों पर कब्जे हुए हैं और हम उनके छुड़वाने में रोल प्ले करेंगे। तो 2009 से आज तक में इतनी चेंजिंग आ गई कि 2009 तक जो कम्युनिटी मजलूम थी वक्फ के मामले को लेकर, वही कम्युनिटी जालिम हो गई कि इन्होंने ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया और ये गिरफ्त कर लिया। तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। न देश के लिए, न कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और न ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह की अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ, जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट पे उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया। तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। हमने, हमारे पुरखों ने, बड़ों ने ये फैसला किया, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क में ही रहेंगे, और उसके खिलाफ, उसको लेकर लड़ाई लड़ी एक लंबी, अपनी कम्युनिटी के उन लोगों से जो थोड़े से थे संख्या में और जिनके सपोर्ट में ये लोग खड़े थे उस वक्त भी, हमने उनसे लड़ाई लड़ी। और हमसे इस देश के फाउंडर्स ने, इस कंट्री के फाउंडर्स ने, आजाद भारत के, कुछ कमिटमेंट्स किए थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेजोरिटेरियन अप्रोच के साथ उन कमिटमेंट्स को और इस मुल्क की बुनियाद रखने वाले लोगों को रोंदा जाने की कोशिश हो रही है। तो इस तकलीफ का इजहार, मालूम है मुझे कि मेरे ये शब्द, मेरे ये एहसास, मेरी कम्युनिटी की ये फीलिंग बहरे कानों से सुनी जाएगी, मुझे मालूम है, वो दिल तक नहीं जाएगी।
क्योंकि वो एक खास सोच बना ली गई है और उस सोच के तहत एक्शंस लिए जा रहे हैं। वो आदमियों से कोई मतलब नहीं है, इंसानों से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, हमारे यहाँ कहावत मशहूर है हिंदी की। तो सदा बसहरा साबित होगी, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है इस मुल्क के, हमारे इस देश के ऐसे नागरिक होने के वास्ते से वजह से हमारी एक जिम्मेदारी आई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आई है कि हम गरीब कुचले ऐसे लोगों को जिन्हें साइडलाइन कर दिया गया, जिन्हें रोंदने की तैयारी कर ली गई और रोंदा जा रहा है, उनकी तरफ से दिल की तकलीफ का इजहार कर सकूं। तो बस सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो सवाल हैं उन सवालों को सुनता हूं मैं तो मुझे समझ आता, सोचता हूं ये इन लोगों के पास से शर्म नाम की चीज खत्म हो गई, एकदम शेमलेस हो गए सवाल करने वालों के बारे में सोचता हूं। जिस तरह के सवाल आते हैं, तो बहरहाल मुझे फिर एक मर्तबा शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का इस बात के लिए। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी पड़े पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे, और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। पूरी कम्युनिटी न्याय के इंतजार में। और यह भी कह दूं मैं आपको कि इस देश के लोग खूबसूरत मुल्क है, लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ हैं जो ये सब इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो हम अकेले नहीं हैं इसमें, यह भी यकीन है। आप में से ही बहुत सारे लोगों का हमको भी साथ मिलेगा, मुल्क का साथ मिलेगा। बदलेगा वक्त, सुबह भी होगी, हमेशा तो रात नहीं रहेगी, वक्त करवट लेगा। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ बात मौलाना फारूकी साहब जो लीगल मामला है उस हवाले से कुछ पॉइंट्स का तज़किरा करेंगे, और मौलाना हकीमुद्दीन साहब भी कुछ बात कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी नहीं, बात पूरी हो जाए। अभी बात क्या करना है, आप सवाल करेंगे आपके लगे हुए इसलिए चलिए। रेजोल्यूशन में क्या क्या चीजें फैसला कर, वो आज जो मीटिंग हुई है उसमें रेजोल्यूशन के एक बुनियादी मुद्दा यह है कि हमने लोगों से ये अपील करी है कि पीसफुल एहतजाज, प्रोटेस्ट, इसके हक का हर हाल में लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, और इस एक्ट के खिलाफ हर लेवल पर, हर जगह पे प्रोटेस्ट होने चाहिए। एक बात ये कही गई है, चाहा गया है। दूसरा ये कि उसकी बहुत मजम्मत की गई है, और हम ये समझते हैं कि जहां भी वायलेंस होगा, इस एक्ट के नाम पर हो या किसी नाम पर हो, वो वायलेंस तहरीक को कमजोर करेगा, और वायलेंस किसी भी मसले का हल कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ भी होना चाहिए पीसफुल होना चाहिए, और जहां वायलेंस हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं शिद्दत के साथ। मौलाना आपने कहा कि ये मुर्शिदाबाद की बात, सभी जगह की बात कर रहे हैं, कहीं भी अगर हो तो गलत है। लेकिन आपने कहा सब्र एक हद तक ही है, मतलब नहीं, भी टूटेगा, पैमाना भी टूटेगा। नहीं, ये बात शाम के बाद शहर एक शहर आएगी, शहर आएगी। उसका क्या तात्पर्य है? उसका यही मतलब है कि आज अगर लोग खामोश हैं
तो कल को लोग खामोश नहीं रहेंगे, हमें मालूम है। आज अगर आप खामोश हैं तो कल आप खामोश नहीं रहेंगे। आप करवट लेंगे तो जमाना करवट लेंगे। সংবাদ এ পর্যন্তই। পরবর্তী অন্যান্য আপডেট পেতে অবশ্যই সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।